So that dependency is one thing जो आपको lifetime, not just in your young age, until your retirement, वो hit करती रहेगी. आप कभी भी financially independent feel नहीं कर पाओगे. आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको फाइनेंस का नाम सुनते ही अनकंफर्टेबल फील होता है कि यार इसके बारे में बात नहीं करते हैं। मनी मैनिफेस्टेशन के बारे में सबने बात करनी है, बट फाइनेंसेस मैनेज कैसे करने हैं उसके बारे में किसी ने बात नहीं करनी है। आपको इसी चीज़ से निकालने के लिए मैं आज एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट लेकर आई हूँ अपने चैनल पे। सारिका चावला जी एक फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं। इस कॉन्वर्सेशन में आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता चलेंगी जो मस्ट हैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, एंड अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है इस एपिसोड से रिलेटेड कि आगे तृप्ति हमें ये पूछना है, सो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड शेयर इट विद अदर पीपल। आई एम तृप्ति मल्होत्रा, आई एम योर इमोशनल वेलनेस कोच, और इस चैनल पे मैं हर एक टॉपिक ऐसा लेकर आती हूँ जहाँ पे आपको हेल्प हो अपनी इमोशनल हेल्थ बेटर करने का। उसी से रिलेटेड फाइनेंस है। फाइनेंस एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि यहाँ इस एरिया में हमारी इमोशनल हेल्थ बहुत डिस्टर्ब होती है अगर कन्फ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं है तो। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड लेट मी नो हाउ डिड यू लाइक इट। आई विल बी गेटिंग मोर गेस्ट ऑन द चैनल, सो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें चैनल और लोगों के साथ शेयर भी करें। Hi Sarika, welcome to our channel. I'm so excited for today's conversation कि आज आप हमें क्या क्या चीजें बताने वाले हैं जिससे मेरी ऑडियंस को बहुत हेल्प होने वाली है। तो I'm excited too, Tripti, and it is pleasure to let people become aware of what I know. So I'm glad that you invited me for this. सारिका, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपकी फाइनेंशियल जर्नी में ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ, ऐसा कोई सिचुएशन थी जहां पे आपको लगा कि हाँ मुझे इस पाथ पे चलना चाहिए। Okay. So डू यू that's a वांट टू शेयर very दैट good विद question. आवर ऑडियंस? Yeah, so I think that's a very good question because females, when we talk about females and when we talk about finance, that combo rarely exists. Right. So when I say that rarely exists, because many people are totally dependent on either their spouse or father or brothers, maybe a male figure, I would say. Right. So same was for me. I worked in corporates for good 20 years, but then it was my husband who was taking care of my finances and entire financial planning for the family, be it anything for children's education, for our and goal, everything. But one incident changed the entire life, Tripti. And we all know that life is really unpredictable. Yeah. ट्रू And ट्रू। COVID, when 2021 COVID came, I'm sure every family was hit back. And something that happened to me, I lost my husband. ओके। He was the financial advisor. Fortunately, he was into this industry. He was managing the whole finances for the family. I was earning for the sake of keeping myself busy, maybe learning, experience, and all that. But all of a sudden, when I became a protector, I became a provider, I had to enter into my finances. I had to look at where all my money is invested. I had to look at what all insurances do we have. And I was not knowing the ABC of it. That was something when I realized that every female has to be educated enough. She has to be aware of things. Maybe she can be a partner wherein she mutually decides where are we investing, why are we investing, and what are the goals that we have in our mind, which we want to achieve 3 years, 5 years, 10 years down the line. सो बेसिकली तृप्ति, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि लाइफ इतनी अनप्रिडिक्टेबल है कि आप जिस पे डिपेंड कर रहे हैं, आप उसके साथ कब तक हैं या वो आपके साथ कब तक है। तो आपको अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना सीखना होगा। एक होता है women are very good at earning money, but it is not about just earning. It is more about managing. मैनेजिंग ऑल्सो। So earning is one part, managing money is another part. And that everything comes when you are aware of. So I would say awareness is the beginning and she has to start with it. That incident made me to enter into finances. वहीं से मेरी financial journey start हुई.
और मैंने ये रियलाइज किया कि इट इज नॉट अ रॉकेट साइंस, डू इट। मेरे में वो हर क्वालिटी थी जो फाइनेंस को मैनेज करने के लिए चाहिए, और मेरे में नहीं, सिर्फ एवरी वुमेन हैज दैट क्वालिटी। हम में ट्रू पेशेंस है, ट्रू हम ऑर्गेनाइज्ड हैं, सो आई स्टार्टेड व्हेन कोविड, आई लॉस्ट माय हस्बैंड, and then I realized I became a protector to the family all of a sudden. This is one reason that made me to enter into finances, but I'm sure there are various other reasons, because today women are not single just because of uncertainties. They are single by choice. ट्रू Right? So when you are single by choice, you have to earn, you have to manage. So start making yourself aware of. दैट लीड्स मी टू अनदर क्वेश्चन कि आपके हिसाब से इंडियन वुमेन Yeah. इन टुडेज टाइम, जो आजकल का सिनेरियो है उसके हिसाब से मेजर इमोशनल स्ट्रगल उनकी पैसे को लेकर किस चीज पे है? क्या ऐसी स्ट्रगल है कि वो फेस कर रही हैं? कृति, इमोशनल स्ट्रगल की अगर हम बात करें ना, तो सबसे पहले तो मैं सोशल कंडीशनिंग को रिस्पॉन्सिबल बनाऊंगी यहाँ पे, बिकॉज हम्म women were never taught on earning money. They were never हम्म taught on managing money. They were always taught that males are responsible for getting money in the family, and हम्म females are responsible to look the household chores. हम्म That social conditioning, उससे धीरे धीरे फीमेल्स बाहर तो निकली, उन्होंने अर्न करना भी शुरू कर दिया, लेकिन अर्न हम्म करने के साथ साथ उनके दिमाग में सिर्फ एक चीज थी, that made them to struggle, and that was कि men are good at it, men are दिस better at माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन दिस ओनली कि it. बहुत सारी औरतें हु आर, आई वुड से कि पर्सनली मैंने देखा भी है Yeah, अपनी सर्कल में कि दे आर अर्निंग वेरी वेल फ्रॉम yeah, 5 लाख to 10 लाख रुपीज ऑल्सो एट लीडरशिप पोजिशंस ऑल्सो, बट right. उसके बावजूद पैसे कौन हैंडल कर रहा है? हस्बैंड, पार्टनर उनका जो है वो पैसे हैंडल कर रहा है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि जो लेडीज अच्छा कमा भी रही हैं या जितना भी कमा रही हैं उसके बावजूद उनके पार्टनर या उनकी फैमिली मेंबर्स, मेल फैमिली मेंबर्स, ब्रदर या Hmm. फादर या हस्बैंड वो हैंडल करते हैं, तो Yeah. उसका क्या नुकसान है औरतों के लिए, बताइए मुझे। बहुत सारे नुकसान है। अगर मैं अभी शुरू करूं तो आई कैन टॉक इन लेंथ, एंड एंटायर एपिसोड में कहती हूँ कि उसी चीज में पूरा स्पेंड किया जा सकता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल तो सही। पहला नुकसान, आप डिपेंड रहते हैं हमेशा दूसरे पे। हम्म आपको मनी के साथ जो रिलेशनशिप है, मनी सिर्फ स्पेंड करने के लिए नहीं होता, मनी के साथ हम्म सेविंग भी होती है, मनी के साथ इन्वेस्टिंग भी होती है, राइट? लेकिन सेविंग और इन्वेस्टिंग के डिफरेंस को नहीं समझते लोग। हम्म आज बहुत सारी लेडीज शायद हम्म सेविंग करती हैं, किटी पार्टीज में हम्म इन्वेस्ट पैसे डालती हैं, हम्म राइट? आई एम नॉट सेइंग दैट्स बैड। उससे आपका ऑब्जेक्टिव डिफरेंट मीट होता है। आपको एक गेट हम्म टुगेदर चाहिए, आपको आउटिंग चाहिए, आपको फन चाहिए, तो उसके लिए किटी पार्टी इज गुड। बट क्या किटी पार्टी में डाला हुआ पैसा आपके लिए ग्रोथ लाता है? नहीं लाता है। हम्म तो वहां पे आपने सेविंग तो कर दी, बट इन्वेस्टिंग का क्या? तो पहली चीज, आप हमेशा जब आपके हस्बैंड या फादर्स या ब्रदर्स या कोई भी मेल पर्सन आपके फाइनेंसेस को देख रहा है, सबसे पहले हम्म डिपेंड है उस पे। और हम्म डिपेंडेंसी आपको कोई भी डिसीजन लेने में बहुत स्ट्रगल रहता है। आई गिव हम्म यू माई एक्सपीरियंस, व्हेन आई लॉस्ट माई हस्बैंड, तो मुझे एलआईसी के पर्सन आए, उन्होंने कहा आपके पास जो भी पैसा आ रहा है उसे आप एलआईसी में इन्वेस्ट कर दीजिए। किसी ने कहा आप इसको सारा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दीजिए। तो जब तक मुझे अपनी नॉलेज ही नहीं है, तो मैं कहाँ हम्म इन्वेस्ट करूंगी? आई विल कम इन टू ऑल दोस डिस्कशंस, या मैं उन्हीं हम्म की ट्रैप में आ जाऊंगी, और हम्म उस ट्रैप में आके हो सकता है मेरे डिसीजंस गलत हो जाएं। तो हम्म मुझे ऐसा लगता है कि एक फीमेल को सबसे पहले अवेयरनेस लानी जरूरी है, अपने फाइनेंसेस को समझना जरूरी है, हम्म ताकि वो किसी की भी बातों में ना आए और वो डिपेंडेंसी ना रहे। शी शुड फील इंडिपेंडेंट, शी शुड बी एबल टू टेक अपने मनी डिसीजंस। हम्म आज आप अपने मनी डिसीजंस ले पाते हो तो दैट हेल्प्स यू टू ग्रो इन लाइफ। सो दैट डिपेंडेंसी इज वन थिंग जो आपको लाइफ टाइम, नॉट जस्ट इन योर यंग एज, अंटिल योर रिटायरमेंट, वो हिट करती रहेगी। आप कभी भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट फील नहीं कर पाओगे।
That's more important. अगर किसी भी लेडी को अभी यू एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर आपके पास कोई आता है कि मुझे अपनी फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट करनी है, Okay. तो ऐसे कौन से तीन स्टेप या तीन स्टेप्स आप बोलेंगी, उनको बताएंगी कि ये इससे शुरू करो आप पहले? ओके, सो तृप्ति, इसका बहुत क्लियर कट आंसर मैं एज के हिसाब से देना चाहूंगी। आज अगर कोई हम्म अपने 20s में है, हम्म उसको एडवाइस ये होगी दैट यू नीड नॉट टू डिले इन्वेस्टिंग। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, जब हम अपने 20s में अपने करियर को स्टार्ट हम्म करते हैं, तो सबसे हम्म पहली गलती करते हैं कि अभी तो कमाना शुरू किया है, और अभी तो मैं सबसे पहले अपने सारे शौक पूरे करूंगी, यू नो एंड हम्म शौक में शॉपिंग करूंगी, ट्रैवल करूंगी, डाइनिंग आउट हम्म करूंगी, फ्रेंड्स के साथ घूमूंगी, एवरीथिंग। लेकिन हम्म जब हम बात करते हैं कि आप ये सब कुछ करिए, ऐसा नहीं कहा हम्म जा रहा है कि यू हैव टू स्टॉप ऑन दीज थिंग्स, लेकिन हम्म यू नीड टू बी स्मार्ट इनफ। तो सबसे पहली चीज फॉर दैट 20s वाले पर्सन के लिए ये होगी दैट यू हैव टू स्टार्ट विद योर फाइनेंशियल जर्नी अर्ली। अब जब अर्ली हम्म वर्ड बोला जाता है तो लोग कहते हैं कितना अर्ली, तो वी से हम्म राइट फ्रॉम योर फर्स्ट पेचेक। When you ओके start from your first paycheck, so you only have to divide your income into buckets. What is your need? What is your want? And how much you should invest. And तो there, ये तो फॉर somebody who's starting early, maybe in their late 20s or 20s. yeah, What about somebody who's in 30s or 40s or 50s? उनके लिए मतलब I have questions for them also, but आप I- बता ही रहे हैं तो इसी को yeah, कंटिन्यू exactly. कर दें. राइट, सो 20s वाले के लिए तो स्टार्ट अर्ली सबसे अच्छा है, बिकॉज जितना आप हम्म जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना ज्यादा टाइम आपका पैसा इन्वेस्टेड रहेगा, और जितना हम्म ज्यादा टाइम पैसा इन्वेस्टेड रहेगा उतना ही उस पे कंपाउंड इंटरेस्ट का बेनिफिट देखने को मिलेगा। एज वी ऑलवेज okay. से दैट कंपाउंड इंटरेस्ट इज द वंडर, you know हम्म so you need to take the benefit of that. But if somebody is starting in 40s, तो मैं ये कहूंगी कि it is never too late. हम्म जब जागो तभी सवेरा। तो अब जब आप हम्म जाग गए हैं कि हाँ मुझे शुरुआत करनी है, तो आप हम्म यहीं से शुरू कर सकते हैं कि यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ। व्हेन आई ओके से स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ, दैट मीन्स यू हैव हम्म टू स्टार्ट मेकिंग योर सेल्फ अवेयर ऑफ थिंग्स। ओके फाइनेंस में अगर मैं एंटर कर रही हूँ, मुझे कहाँ से शुरुआत करनी है। एंड फॉर दैट देर आर लेडीज जो नॉइस में चली जाती हैं। यू डोंट हैव टू हेयर द नॉइसेस, you have to have a financial advisor, a financial advisor as a friend who can guide you, who can mentor you, right? So that mentoring is very important. You need to first get that awareness, start हम्म tracking what income you have and what are your expenses. When you start tracking your income and expenses, then you actually realize कि मैं कहाँ spend कर रही हूँ और कहाँ unnecessary मेरा पैसा जा रहा है. When we meet people, you won't realize कि people are almost spending on every day out on eating outside food, eating right? outside is a major concern for a lot of people. Exactly. फिर there are people who do impulse shopping. आज सब हम्म कुछ ऑनलाइन है, सारा दिन फोन हाथ में है, घुमाया, हम्म ये चीज पसंद आ गई, ऑर्डर कर दी। 2 मिनट के लिए रुक जाइए और सोचिए कि डू आई रियली नीड इट। And when हम्म you will get the answer, no, I don't need it, and I can guarantee you, बहुत बार ऐसा होगा जब आप impulse shopping नहीं करेंगे, एक बार उसको thought देंगे तो you will put a stop there. So that's more important. So first thing, you have to bring the awareness, have a financial हम्म advisor, start tracking your income, start tracking your expenses. Next हम्म thing, build an emergency fund. हम्म Emergency fund which can help you during critical times. ओके Let's say somebody loses the job. If हम्म there's a job loss, if there is a health issue, because females in their career are sometimes have to take breaks also. हम्म Break, or maybe for the child upbringing, they want to have a हम्म break again. So you should have that emergency fund in place, which can help you during those critical times. So these are a few. And when I say invest in yourself, you have to invest not just to create a wealth for yourself. Don't हम्म forget your health also.
मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि इन्वेस्टमेंट और सेविंग में एक तो आप डिफरेंस बताइए, वेरी सिंपल लैंग्वेज जो सबको समझ आए। हम्म, और अगर आई एम कंटिन्यूइंग विद अनदर क्वेश्चन ऑल्सो कि अगर कोई लेडी बहुत ज्यादा नहीं कमा रही है, फॉर एग्जांपल लाखों में नहीं है, इट्स जस्ट फ्यू थाउजेंड्स ओनली, तो या क्या वो भी इन्वेस्ट कर सकते हैं? ओके। सो सबसे पहले समझते हैं सेविंग और इन्वेस्टिंग में क्या फर्क। इन्वेस्टमेंट में क्या फर्क ऐसा है? सेट कि मैंने किटी पार्टी शुरू करी और मैंने हम्म। किटी पार्टी में जो भी 5,000 का 10,000 का अमाउंट एवरी मंथ देना स्टार्ट किया। बट जब हम्म। मेरी किटी निकलती है मुझे जो भी नंबर ऑफ मेंबर्स के हिसाब से जो अमाउंट मिलता है, लेट्स से हम्म। 50,000 मुझे मिला, तो ठीक है, हम्म। व्हेन आई एम इन फर्स्ट फर्स्ट इन टर्न तो वो मेरी सेविंग हो गई। हम्म। When I put something in a piggy bank at home, when I keep हम्म। something in a saving account, that is हम्म। all saving। क्योंकि वहां पे हम्म। जो आपके पैसे में जो ग्रोथ है वो तीन हम्म। 4% से ज्यादा नहीं है। हम्म। और आज इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें, जिसे हम महंगाई कहते हैं, कोई चीज अगर पिछले साल 100 रुपए की आती थी तो इस साल वो 106 रुपए की आती है, बिकॉज 6% की इन्फ्लेशन आ गई। इन्फ्लेशन है। हम्म। तो सेविंग में तो 3-4% ही मिला और हम्म। इन्फ्लेशन 6% से बढ़ गई। तो हम्म। क्या आपका पैसा ग्रो किया? नहीं किया। नहीं किया। आपने सेविंग में पैसे को रखे रखा, सिर्फ ये सोच हम्म। कि पैसा ग्रो कर रहा है, लेकिन वो एक हम्म। वो पैसा ग्रो नहीं कर रहा है, वो सिर्फ वहां आइडल पड़ा है। उसकी तो हम्म। परचेजिंग पावर ही धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। सो दैट इज सेविंग। लेकिन जब हम इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो आप ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को देखते हैं, ऐसी जगहों पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहां रिटर्न्स आपकी इन्फ्लेशन को बीट कर सके। ओके। अगर इन्फ्लेशन 6% है तो उसके ऊपर 4 से 5% एक्स्ट्रा अगर आपको मिल रहा है, रिटर्न सिक्स होना चाहिए। 6 में +5 करें, 11-12 काइंड ऑफ अ रिटर्न अगर आपको मिल रही है, तो दैट हम्म। समथिंग इज गुड टू गो विद। ओके। दैट इज व्हाट द इन्वेस्टिंग इज, वेयर योर इन्फ्लेशन आपकी बीट होनी चाहिए, अदरवाइज आपके पैसे की परचेजिंग पावर खत्म हो जाती है। सो दैट इज द ह्यूज डिफरेंस बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग। अब हम बात करें क्या जो पैसा ज्यादा नहीं कमा रहा है वो कैसे स्टार्ट करे। मैं बात करती हूँ एक हाउसवाइफ की। हम्म। हाउसवाइफ की अगर हम बात करें तो उन्हें अपने हस्बैंड से एक पर्टिकुलर अमाउंट मिलता है जिससे हम्म। उन्हें घर के सारे खर्चों को ड्यूरिंग दैट मंथ पूरा करना होता है। हम्म। हम्म। पूरे खर्चे करने के बाद उनको लगता है अब मेरे पास सिर्फ 1,000, 1,500, 2,000 बचे। और हम्म। उनका माइंड क्या कहता है, इसको मैं क्या इन्वेस्ट करूं, इससे क्या हाँ। ही होगा। हम्म। तो कहने का यहाँ पे ये मतलब है कि इससे क्या ही होगा इज रॉन्ग थिंग। इससे बहुत कुछ हम्म। होगा अगर आप इसको एक अच्छे टाइम तक इन्वेस्ट करती चली जाए। और आज की हम्म। डेट में अगर हम देखें तो म्यूचुअल फंड्स जिनमें हम एसआईपी की बात करते हैं, सिस्टमैटिक हम्म। इन्वेस्टमेंट प्लान, तो आप पांच हम्म। सौ रुपए से एसआईपी शुरू कर सकते हो। हम्म। बहुत सारे फंड हाउसेस ने 100 रुपए महीने से एसआईपी स्टार्ट कर दी है। ओके। आप बिलीव नहीं करोगे तृप्ति, मेरे घर की जो मेड है उसकी 2,000 की एसआईपी चल रही है। सो सिंपल इज दैट कि अगर कोई हाउसवाइफ भी है जिसके पास अपना कोई हम्म। सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, हस्बैंड से उसे जो घर चलाने का खर्चा मिलता है, अगर वो उसमें से सिर्फ 500 रुपए भी साइड कर ले एवरी मंथ, तो शी हम्म। कैन बिकम वेल्दी इन लॉन्ग सो रन। एसआईपी हो गई एक, और क्या क्या चीजें हैं जिसमें वो इन्वेस्ट कर सकती हैं कि फॉर एग्जांपल गोल्ड या समथिंग एल्स, व्हाटएवर यू वांट टू या सजेस्ट? तो देखिए, जब हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं तो हमें हम्म। डाइवर्सिफिकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। व्हेन आई से डाइवर्सिफिकेशन तो उसका मतलब है कि आज अगर मेरे पास 1,000 रुपया है इन्वेस्ट करने के लिए, हम्म। क्या मैं पूरा 1,000 एक जगह इन्वेस्ट कर दूं, या मेरे को हम्म। मुझे उसको अलग अलग जगह स्प्लिट करना चाहिए। तो पहले तो स्प्लिट क्यों करना चाहिए वो समझते हैं। अच्छा। एक लेडी वॉशिंग मशीन में उसको कपड़े दिए जाते हैं धोने के लिए। आपके पास हम्म। कुछ व्हाइट क्लोथ्स हैं, कुछ कलर्ड क्लोथ्स हैं। तो हम्म। क्या आप दोनों क्लोथ्स को इकट्ठा डाल के वॉशिंग मशीन में धो देंगे? नहीं नहीं। धोएंगे। नहीं। क्या रीजन? कि आपके दिमाग में रहेगा कि व्हाइट कपड़ों पे कलर्ड वाले का रंग ना चढ़ जाए। रंग लग जाएगा। हम्म। आपने उस रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए आपने हम्म। दोनों कपड़ों को एक साथ नहीं डाला, पहले व्हाइट कपड़े धो हम्म। के निकाल लिए फिर कलर्ड वाले डाले। तो हम्म। आपने अपने रिस्क को कम किया। तो इसी तरह से जब हम्म। हम कहते हैं कि जब 1,000 रुपया डालना है, तो हम्म। 1,000 रुपए को पूरा एक जगह डाल दूं या स्प्लिट कर दूं?
अच्छा। तो अगर मुझे स्प्लिट करना होगा तो स्प्लिट करने का रीजन क्या होगा, ताकि हम्म। जहां मैंने वो 1,000 डाला है, अगर वो कल को कंपनी डूब गई तो मेरा पूरा 1,000 रुपया डूब गया। ओके। लेकिन अगर मैंने वही 200 करके 5 जगह इन्वेस्ट हम्म। किया, तो एक अगर हम्म। डूब गई और बाकी 4 ग्रो कर गई तो मेरा पैसा सेफ। हम्म। हमने यहाँ एक छोटे नंबर से एग्जांपल लिया है, बट अगर आप देखें तो एफडीज में भी जो आपको हम्म। सेफ्टी दी जाती है वो 5 लाख तक के अमाउंट की दी जाती है। कल को हम्म। बैंक अगर डिफॉल्ट कर जाए या कोई भी रीजन हो जाए तो आपको हम्म। 5 लाख से ऊपर की सेफ्टी नहीं है। नहीं है। हम्म। राइट, सो हम अपने रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए डाइवर्सिफाई करते हैं। अब डाइवर्सिफाई करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स बहुत हैं। आपने हम्म। कहा रियल एस्टेट, आपने कहा गोल्ड, आपने कहा म्यूचुअल हम्म। फंड्स, आपने कहा पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स हैं। तो कहाँ हम्म। इन्वेस्ट करना चाहिए? हम्म। अब कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। आपकी एज क्या है, आपका गोल क्या है। अब इस गोल पे अगर मैं बात करूं, मैं आपसे एक सवाल करती हूँ। अगर दूध को गैस पे चढ़ा दिया जाए तो आप उसे कितनी देर गर्म करेंगी? जितनी भी रिक्वायरमेंट है कि क्या करना है उस दूध का, बॉईल करना है एग्जैक्टली, तो वो एग्जैक्टली। सर्टेन पीरियड के लिए यूज होगा। सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। अदरवाइज नॉर्मली इसका आंसर ये आता है कि जब दूध उबल जाएगा तो हम बंद कर देंगे। लेकिन हमें दूध को उबालना नहीं है, उबालना नहीं है, हाँ। मुझे उसकी दही जमानी है तो मैं तो सिर्फ लुक हम्म। वार्म करूंगी। मुझे उसकी हम्म। रबड़ी बनानी है तो मैं उसे बड़ी देर तक हम्म। उबालती रहूंगी। तो बेसिकली हम्म। आपका एक गोल है उस दूध को लेके। सिमिलरली हम्म। आपकी इन्वेस्टमेंट्स को लेके भी आपका एक गोल होता है। हम्म। मेरा हम्म। गोल क्या है, मैं इसे क्यों इस पैसे को जमा कर रही हूँ? क्या मैं बच्चे हम्म। की शादी करना चाहती हूँ, बच्चे की पढ़ाई के लिए करना चाहती हूँ, हम्म। अपनी रिटायरमेंट के लिए करना चाहती हूँ? जो लोग भूल जाते हैं, जब वो रिटायर्ड हो जाते हैं तब उनके पास पैसा नहीं बचता, क्योंकि तब तक सब कुछ बच्चों की पढ़ाइयाँ, बच्चों की शादियों में सब जगह खर्च हो। खर्च हो चुका होता है। और रिटायरमेंट एक ऐसी चीज है जिसके लिए बैंक आपको कभी लोन नहीं देता। हम्म। तो विद दैट फैक्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि रिटायरमेंट भी एक गोल है जिसे हम्म। मुझे अपने यंग एज में ही मीट करना है। हम्म। तो व्हेन आई से कि कौन से इंस्ट्रूमेंट में आप इन्वेस्ट करेंगे, तो वहां सबसे हम्म। पहले आपका आता है आपका गोल क्या है, हम्म। क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या मीट करना चाहते हो, कितने टाइम में करना चाहते हो। बिकॉज गोल अगर मैं कह दूं बच्चे की एजुकेशन, तो ओपन एंडेड हम्म। नहीं हो सकता। हम्म। मुझे उस बच्चे की 18 ईयर्स की एज पे पैसा चाहिए, मुझे बच्चे की हम्म। 25 ईयर्स की एज पे उसकी शादी का पैसा चाहिए, हम्म। मुझे अपनी रिटायरमेंट बाय द टाइम आई एम 60 उस पे मुझे पैसा चाहिए। एंड हियर अगेन अ वेरी गुड फैक्ट कि पहले हम्म। लोग 60 को रिटायरमेंट मानते थे। आज हम्म। आप उससे बात करो तो वो 40s में रिटायर हो जाना चाहते हैं। हाँ, मतलब राइट, काफी सो लोग। काफी लोग, और उसका हम्म। रीजन क्या है? बिकॉज दे वांट टू एंजॉय लाइफ। हम्म। और वो कहते हैं एक्सपीरियंसेस गैदर करना है हमें। हम्म। So to do that, first you need to understand what is your goal and how much time you want to achieve it. Not only this, you should know कि मुझे कितना कॉर्पस चाहिए होगा उस टाइम पे। विद हम्म। इन्फ्लेशन आज एक शादी अगर 50 लाख मांगती है, तो विद इन्फ्लेशन 10 years बाद कितना मांगेगी? हम्म। Have to look at it. तो Not only अगर कोई, सॉरी, अगर कोई लेडी 50 इयर्स में, फॉर एग्जांपल 45 प्लस है या 50s में है, अगर वो चाह रही है कि अभी बस मैं शुरुआत करने की कोशिश कर रही हूँ, क्या, तो उनके लिए फर्स्ट स्टेप क्या हो सकता है? कि पहले, और मे बी शी डजंट अंडरस्टैंड कि इतनी ज्यादा फाइनेंसेस उनको समझ नहीं आते, एंड शी स्कैर्ड कि पता नहीं, अब इतना है भी नहीं मेरे पास कि मैं किसी फाइनेंशियल एडवाइजर के पास जाऊं। क्या? तो वट एवर अमाउंट आई हैव, मैं उसको किस तरह से मैनेज करूं, So उसके when लिए उनको क्या सजेस्ट करेंगी? exactly. So when she is already in her 50s, तो आई थिंक वो हम्म। अपनी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज से मोर और लेस या तो फ्री हो गई होंगी या होने या वाली। होने वाले हैं। हम्म। सो जब आप हो गए हो या होने वाले हो, दोनों हम्म। सिचुएशंस में बहुत डिफरेंस हो जाता है। क्योंकि हम्म। आपके पास एक एग्जिस्टिंग अमाउंट क्या है वो भी देखना हम्म। जरूरी है, और अभी हम्म। कौन से गोल्स बाकी हैं वो भी देखना जरूरी है। रिटायरमेंट तो मैं इग्नोर कर ही नहीं सकती अब, वो भी देखना हम्म। जरूरी है। सो व्हेन आई हम्म। कनेक्ट विद अ फाइनेंशियल एडवाइजर मींस यू नीड टू बी वेरी ट्रांसपेरेंट। जैसे अब हम एक डॉक्टर को विजिट करते हैं, तो डॉक्टर आपको जब पूरा एग्जामिन करता है फिर कोई मेडिसिन बताता है। हम्म। Only when we understand their entire situation, घर में कौन हम्म। कौन है, क्या लाइबिलिटीज बची हैं,
क्या आगे के गोल्स हैं, जब तक सारी चीजें प्रॉपरली ना समझी जाएं। और आज की डेट में अगर आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से कनेक्ट करते हैं, उनसे पूरा डिटेल में डिस्कस करते हैं, तो देयर आर एडवाइजर्स जो कंसल्टिंग के कोई चार्जेस नहीं लेते। ओके ओके। So when you consult them, they don't charge you. They only get their payouts from the companies जिनके साथ आप काम करते हैं। ओके। तो आपको एडवाइस लेना तो बिल्कुल बनता है, बिकॉज देन दे हैव द क्लियर पिक्चर। ऐसे तो आप गूगल पे भी लिख देंगे मैं कहाँ इन्वेस्ट करूं, तो गूगल भी आपको कुछ ना कुछ दे देगा। बट देन गूगल डजंट अंडरस्टैंड कि आपकी फैमिली सिचुएशंस क्या है। एंड दैट इज द आइडिया कि आप जब एक किसी एडवाइजर से कनेक्ट करते हैं तो दे अंडरस्टैंड यू इन डिटेल। आपकी रिस्क कैपेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट करती है। आई हैव क्लाइंट्स जो 50s में भी रिस्क लेना पसंद करते हैं, प्योर इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। आई हैव क्लाइंट्स जो 30 में भी बहुत कंजर्वेटिव हैं, जो कहते हैं कि नहीं नहीं मुझे इक्विटी में नहीं जाना। सो यू नो इट इज ऑल अबाउट हाउ योर बिहेवियर इज, हाउ कंजर्वेटिव यू आर, हाउ मॉडरेट यू आर, हाउ एग्रेसिव यू आर। सो बहुत चीजें मैटर करती हैं। सो ऐसा नहीं हम कह सकते कि जो चीज आपके लिए वर्क कर रही है तृप्ति वही मेरे लिए करेगी। हम बहुत बार लोगों की बातों में आके इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, अच्छा मैंने ये कराया आप भी ये करा लो, इट इज वेरी गुड, बट व्हाट इज गुड फॉर यू मे नॉट बी गुड फॉर हर। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन सारिका इसी से रिलेटेड है कि फॉर एग्जांपल फॉर दोज वुमेन हु आर नॉट इन इन यू नो वेरी हेल्दी एनवायरनमेंट, वेदर इट्स देयर इन देयर ओन फैमिली सिस्टम की पेरेंट्स हैं या सिबलिंग्स हैं, या फिर ऐसी औरतें जो शादीशुदा हैं बट टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में हैं, और बहुत ज्यादा फ्रीडम नहीं है फाइनेंसिस को लेके, तो उनके लिए क्या सजेस्ट करना चाहते हो आप कि वो अपने आप को कैसे स्ट्रांग बनाए फाइनेंसिस के मनी रिलेटेड एरियाज में? ओके, सी सबसे पहले तो उन्हें ये फिगर आउट तो करना सबसे जरूरी है कि अपने आप को प्रायोरिटाइज करें। हम्म एक ऐसे रिलेशनशिप में वो अपने आप को प्रायोरिटाइज करना भी भूल जाती हैं। तो फर्स्ट दे नीड हम्म टू प्रायोरिटाइज देमसेल्व्स। और अगर उन्हें घर से कुछ भी पैसा मिलता है टू रन द शो, उसमें हम्म से कुछ ना कुछ अपने आप में इन्वेस्ट जरूर करें। दे नीड टू कम आउट ऑफ दैट टॉक्सिक रिलेशनशिप इन अ वे, अपने आप को बिजी करें, अच्छे लोगों हम्म के साथ सराउंड करें, कुछ सीखें, हम्म सीखें और आगे बढ़ें। आज बहुत सारे ऑनलाइन बिजनेसेस हैं, बहुत सारे ऐसे हम्म बिजनेसेस हैं जो घर से किए जा सकते हैं। तो ओके। आप ऐसा कुछ अपनी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करते हुए हम्म आप देखें कि आप क्या कर सकती हैं। वहां से निकलना जरूरी है, उस टॉक्सिक एनवायरनमेंट से निकलिए, अपने आप को अच्छे लोगों से सराउंड करिए, पॉजिटिव लोगों के साथ सराउंड करिए जो आपको ये नहीं कहते कि यू कैन नॉट डू इट, दे ऑलवेज से यू कैन डू इट, राइट? सो ओके। सराउंड योरसेल्फ विद दोस पॉजिटिव पीपल, मेक अ सोर्स हम्म ऑफ अर्निंग फॉर योरसेल्फ, बी इट स्मॉल और बिग। अभी हम उस पे जा ही नहीं रहे, be it हम्म small or big, because even small when remains consistent it gets you the wealth. मेक्स द डिफरेंस। Yes, absolutely. So we say start small, think big. सो ट्रू। मेरा Yeah. नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे सारिका ये है कि आपकी पूरी जर्नी में कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा लेसन जो आप विश करते हो कि यार ये मुझे पहले पता होता तो बेटर होता? I know. So there are many, ओके, लेकिन हाँ तो मुझे शेयर वन विद या सो अस। सेविंग और इन्वेस्टिंग का डिफरेंस नहीं पता था मुझे, तो मैंने सेव ओके तो बहुत किया लेकिन ओके। इन्वेस्ट, आई विश आई वुड हैव हम्म इन्वेस्टेड माय मनी अर्लियर, so I हम्म would have been able to create wealth. Like before my marriage, I had been working for almost 4 years and then ओके 18 years of my married life. So whatever investment was made, that was made by my husband and the credit goes to him. Lekin when हम्म he passed away and I took over the finances, and now हम्म I can see that I can educate many more कि सेविंग से कुछ नहीं होगा, डोंट पुट योर मनी इनटू सेविंग अकाउंट्स। वहां सिर्फ शॉर्ट टर्म गोल्स जो आपके हैं 6 महीने साल के अंदर वाले, उनको आप सेविंग में रख सकते हैं कि ये मुझे अगले 2 महीने में गाड़ी लेनी है, ये मुझे अगले 2 महीनों में कोई आईफोन लेना है, एनीथिंग हम्म ऑफ दैट काइंड, बी इट अ शॉर्ट टर्म गोल, एनीथिंग विच इज 5 years 10 years, आप उसको सेविंग में पैसे को रख के उसको किल कर रहे हैं। सो आई विश आई आई वुड थिंक
knowing this difference of saving and investing. Yes, I think most of the women they are still doing the same thing कि सेव करना है और इन्वेस्टमेंट आई थिंक अभी भी बहुत ही रेयरली नोन फैक्ट है बहुत सारी लेडीज के लिए। एक्चुअली फीमेल्स को एक तो रीजन है कि उनको लगता है मेन आर गुड एट इट, दूसरा हम्म इट इज नॉट माय कप ऑफ टी। हम्म इट इज नॉट दैट कि हमेशा जरूरी नहीं है लाइफ हमें टीच करे। आई थिंक वुमेन को अगर कुछ स्टार्ट करना है ना, वो सिर्फ यहां से भी स्टार्ट करें कि जो फाइनेंशियल प्लानिंग हस्बैंड्स ने की हुई है उनके डॉक्यूमेंट्स को ऑर्गेनाइज करें। हम्म रिमाइंडर्स आते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस में आपका कब प्रीमियम जाता है, कितना सम एश्योर्ड है, मतलब इन्वॉल्व बेसिकली इन्वॉल्व रहे उस छोटी छोटी एक्टिविटी में, चीजों एटलीस्ट स्टार्ट नॉलेज करिए। रहेगी कि क्या हो रहा यस, है कैसे चल रहा है। छोटी छोटी चीजों से आप स्टार्ट करिए। हम्म बहुत बार मैंने ऐसा भी देखा है तृप्ति, एक बार हमारे एक क्लाइंट, उनकी तबीयत काफी खराब हो गई, उनकी वाइफ का मुझे फोन आता है कि मुझे नहीं पता हमारी हेल्थ इंश्योरेंस कहाँ से है, तो मैं हम्म कहाँ लेके जाऊं हस्बैंड को, क्या करूं, तबीयत खराब हो गई है, दिस दैट। सो देन आई असिस्टेड हर हाउ शी हैज टू लुक एट इट, राइट। सो द आइडिया इज कि एटलीस्ट बेसिक नॉलेज रखिए, कौन सी हम्म से इंश्योरेंस लिया हुआ है, पेपर्स कहाँ हैं, मेंटेन हम्म करिए उन्हें, थोड़ा थोड़ा इन्वॉल्व होइए, यू विल स्टार्ट लाइकिंग इट। एंड आई कैन गारंटी यू वंस यू स्टार्ट डूइंग इट, यू स्टार्ट लाइकिंग इट, बिकॉज जब आप पैसे में ग्रोथ देखते हो ना, तो आपको मजा आता है, फिर आपको लगता है वाह आई कुड हैव डन इट अर्लियर। मोस्टली वुमेन उनके साथ यही इशू आई थिंक कि वो डरते बहुत हैं कि पता नहीं पैसा मतलब डूब जाएगा कुछ आपने गड़बड़ ना डर हो जाए। डर वाली बात को मैं यहाँ एक जरूर बात बोलूंगी। जिन लेडीज हम्म में अगर फियर है, डर है, हम्म FEAR, ए आर एक पेपर में लिख लीजिए FEAR, और उसकी फुल फॉर्म मैं बता देती हूँ आज आपको। बता दीजिए। फेस एवरीथिंग एंड राइज, FEAR, फेस एवरीथिंग एंड। एंड गाइस, तो आप जब तक वेरी फेस नहीं नाइस, करेंगे चीजों को, तो आप राइज नहीं कर सकते। वेरी नाइस, वेरी नाइस। डू इट एनीवेज बेसिकली इन एब्सोल्युटली। शॉर्ट। देखिए, अगर हमें यही डर रहता कि चलेंगे तो गिर जाएंगे, तो हम चलना नहीं सीखते, राइट। सो आपको डर को तो निकालना है। बिफोर वी एंड दिस कॉन्वर्सेशन सारिका, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कोई ऐसा मनी मंत्र जो आप ऑडियंस को देना चाहती हैं कि सबके लिए बेनिफिशियल हो, कि सब याद रखें उसको कि हाँ ये हमें याद रखना चाहिए। सो मनी मंत्र, देखिए मनी, अगर हम बात करें तो अर्निंग तो सब कर लेते हैं, और हम्म अर्निंग इज नॉट दैट डिफिकल्ट, लेकिन हम्म उसको मैनेज करना इज एन आर्ट। हम्म। उस आर्ट को जरूर सीखें, बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट मैनेजिंग योर मनी, देन you become financially independent. So that's the only thing I would love to say. That's so lovely because, you know, in my personal journey, my personal experience and lesson, in fact, not experience, lesson was this only, that I told myself that I have to be a better money manager. या एब्सोल्युटली। और मैं तो लेडीज को ये कहती हूँ, जब चीफ फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन एक लेडी हो सकती हैं जो देश चला सकती हैं, देश का फाइनेंस संभाल सकती हैं, तो आप अपने घर का फाइनेंस तो संभाल ही सकते हो। एंड True, एवरी true, true. फीमेल इज हैविंग ऑल दोस क्वालिटीज जो आपको फाइनेंस मैनेज करने के लिए चाहिए। पेशेंस चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, आप ऑर्गेनाइज्ड होने चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, एंड फीमेल्स आर हम्म। रियली गुड एट इट। सो मुझे मुझे बताइए कि अगर कोई आपके साथ आपसे बात करना चाहता है, मिलना चाहता है, कंसल्टेशन लेना चाहता है, तो बताइए मुझे कि कहाँ मिल सकते हैं। सो हम वो बेसिकली, डिस्क्रिप्शन में भी डालेंगे आपका चैनल के नीचे। so we are based out of Delhi currently. We are going to open an office in Gurgaon by next year. However, my Insta channel is there, sarika.chavla, wherein Chavla may LAA. And ओके। I have a YouTube channel also wherein we do podcast. We bring real life stories to people, how people got struggled with money, but then they really fought for it. So their stories can be watched on the podcast also on YouTube channel. So I can share my number that can be put in the description for sure. And यस श्योर। anytime connect with us. I'll be more than happy to connect with females for sure, because that's the aim I have. When I entered into this industry, I thought this is something I have to do. I'm on a mission to educate as many people as I want.
Because initially when I thought of starting these conversation, first मेरा यही आया कि finances से ही start करना है, because that is very struggled area, कि उस area में सबको बहुत problem होती है. तृप्ति, So फाइनेंस एक ऐसी चीज है, आप सो रहे हैं, आप जाग रहे हैं, आप रात को सो भी जाते हैं तो भी बिजली का बिल चल रहा है. true, true, true. So everybody has to take charge on their finances. Earning is one part, managing is the other. Be a manager to your family, and I'm sure you'll do the justice. I'm sure a lot of women going to connect with you on this. Sure. So thank you so much, Sarika, for joining us here It was on mutual, our I would channel. say. Yeah. Hope to see you soon again on the channel. We can talk Thank you. on various other subjects, like somebody who is entering into the corporate, somebody who is getting retired, what all products are there, and so many other things. And however, for any individual consultation, if people would really like to connect, I'm just a call away. That's so lovely. Thank you. Thank you so much, Thank you. Sarika. Have a lovely day. Same Thank to you you. so much. Thanks, dear. Bye. Bye.